Everyone's life is full of challenges, and when we are in the student age, तब तो और बड़े बड़े challenges आते हैं. And if you are a law aspirant, challenges are at its peak. So what we have done, we have asked so many of our law aspirants within our institute, even to the students who are studying law entrances from some another institute, we have circulated a form to every student and have requested to mention their biggest challenge which they are facing. And if you are watching our video and you are also thinking, yes, this is a challenge which I am facing, so guys, don't forget to put your challenge in the comment section and let us know, क्योंकि इस वीडियो में we are going to break down answers for every challenge faced by you. To book a free one-on-one law counseling online or at any IMS center, check out the link in the description box or the pinned comment below. So guys, welcome to the YouTube channel of Get Set Law by IMS. My name is Siddhant Singh and जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, what is the biggest challenge which every law entrance aspirant is facing? I am here to give a concrete answer to all those questions. So what I have done, I have taken up all the problems in a proper chronological order and have identified what could be that major challenge which every student is facing. I'm going to give answer to the challenges which you have faced. So guys, please watch this video till the end and end में जाके जरूर मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा. Thank you so much. ठीक है, चलिए. So शुरू करते हैं वीडियो को. So the first challenge which most of the students have faced and have given us response in the Google form, that sir, टाइम अभी भी मैनेज नहीं हो पा रहा है. वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू बैलेंस आवर ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट, आवर ओन क्लैट प्रिपरेशन एंड आवर ओन स्कूल प्रिपरेशन. सो कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब ट्यूशन आ रहे हैं, तो तीन नाव में तैर रहे हो, तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस दैट वी माइट गोइंग टू ड्राउन डाउन. डोंट वरी, सिद्धांत सर यहाँ हैं, विल गोइंग टू गिव यू अ सोल्यूशन टू दिस. सो इफ आई टेक इट एज अ प्रॉब्लम और अ चैलेंज कि मैं बैलेंस ही नहीं कर पा रहा हूँ, सिट क्वाइटली, सिट विथ योर पेरेंट्स, with your mentor and strategically उसे formulate करो कि मुझे कितने दिन, in how many days I have to go to school and how many days I can skip school so that मेरा 75% से लेके 85% का attendance maintain हो सकता है. To my understanding, अगर 25 days मुझे स्कूल जाना है out of 30 days, I can skip 5 to 6 days more और मैं आराम से क्लैट की प्रिपरेशन कर सकता हूँ. बट ये 1 मंथ में नहीं होगा. यू नीड टू डू इट फॉर द नेक्स्ट 1.5 मंथ, तो ही ईजिली बैलेंस कर पाओगे. तो आपको स्ट्रैटेजिकली इस पे स्टेप्स बनाने पड़ेंगे. दैट इज, आई नीड टू गिव 4 to 5 hours टू क्लैट व्हेन आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल. व्हेन आई एम गोइंग टू स्कूल, 2 hours डेली with reading of newspaper, current affairs and watching regularly the classes ये हो सकता है. But one important thing to note over here is कि if your CLAT classes or the law entrance classes are clashing with your tuitions, please cover up those classes after your tuitions are done. Don't take a burden of all your assignments, presentations जो स्कूल में हो रहे हैं, स्कूल के छोटे छोटे टेस्ट which is like 30 marks, 40 marks, उसका टेंशन मत लीजिए, because these marks are not going to add up in your board exams. इसका कोई तुक नहीं होता. Talk to your teachers, explain them. If required, go with your parents and give it in writing that we are preparing for law entrance exams and this is where we will not be able to come and this is what our mock scores are going on. So ऐसे आप मैनेज कर पाओगे. If you don't talk, यहाँ पे बर्डन लोगे और बर्डन बन जाएगा. So ये बिगेस्ट चैलेंज है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है. द सेकेंड, द मोस्ट एंड अनरिजॉल्व चैलेंज जो कि क्लैट एग्जाम, एलेट एग्जाम, स्लैट तक रहने वाला है, दैट इज सर करंट अफेयर्स और जीके. तो अभी बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है. वी आर इन द मंथ ऑफ जुलाई. पिछले 6 मंथ्स का बैकलॉग हो गया है, रिविजन साइकिल नहीं हो पा रहा, अच्छे से क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर भी रीड कर रहे हैं, मंथली मैगजीन्स आर ऑल्सो देयर, स्टिल वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट. द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच यू गाइज आर डूइंग, यू आर गोइंग फॉर मल्टीपल सोर्सेज. भाई बहुत सारे सोर्सेज पे मत जाओ. अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का पार्ट हो, फर्स्ट टेक योर न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर कवर्स अप मोस्ट न्यूज़ ओवर देयर. सेकेंड, आपका जो भी मंथली मैगजीन है, मंथली कंपेंडियम, वट एवर यू फॉलो दैट थिंग. And third is your classes, because if I'll tell limiting these 3 sources and repeating it again and again, the biggest problem
which comes is the revision part. Iska simple funda which I have cracked it is simple, like let's say today is 1st of July for example, जो कि नहीं है but फिर भी 1st of July. I have studied 3 topics. I title it as 3T. Now next year 3T when I'm going to study is maybe 7th of July को मैं वापस से ये 3 टॉपिक पढ़ूंगा along with 3 new topics. अगर ये सर्कुलर फ्लो लगातार चलता जाएगा, इफ यूल कीप ऑन फॉलोइंग दिस अगेन एंड अगेन फॉर द नेक्स्ट 3 months, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अक्टूबर एंड नवंबर विल बी अ केक वॉक फॉर यू पीपल. सो please check how many videos are undone, how many magazines you have to do, the weekly magazines or the monthly magazines, whatever book you are referring from your institute, pick that up and see कि कितना बाकी है, and sit with your mentor and make that plan, because this is something which is problematic. तो अगर memorizing issue है, रिविजन से ही वो क्रैक होगा. देर इज नो अदर सोल्यूशन कि मैं उसे रट लूंगा. यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, बिकॉज व्हेन द क्वेश्चन कम्स टू यू इन द पेपर, यू गोइंग टू से कि सर मुझे याद था बट मैं मार्क नहीं कर पाया. द ओनली थिंग इज क्योंकि वो रिवाइज नहीं था. इट्स नॉट ओनली मोर अबाउट रिवाइजिंग इट 1 or 2 times, इट्स मोर ऑफ रिपीट रीडिंग. मार्क इट अप. अगर ये फॉलो कर लिया ना तो करंट अफेयर्स आसानी से हो जाएगा. डोंट कैलकुलेटेड विद योर मॉक्स, क्योंकि मॉक्स में देर आर क्वेश्चन जो कभी कभार आउट ऑफ कोर्स मीन्स आउट ऑफ योर करिकुलम जो आपको पढ़ाया गया, आपको एक सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए मॉक्स में दिया जाता है. सो दैट्स वाई फर्स्ट लिमिट योर सोर्सेज, प्लीज डोंट फॉलो मल्टीपल. 2 मैक्सिमम 3 सोर्सेज को फॉलो करना है. रिपीट रीडिंग लगातार करनी. विच एवर टॉपिक यू स्टडी टुडे, आफ्टर 5, 6, 7, 10 वट एवर इज योर डे ऑफ रिविजन, डू दैट थिंग. तभी आपको वो रिपीट रीडिंग में हेल्प करेगा, मेमोराइज हो जाएगा. ठीक है, तो हो सकता है यू मस्ट हैव टेकन 2 hours to do it for the first time, 3 टॉपिक को, then you will take only half an hour, then the next time करोगे you'll only take 10 minutes, then 5 minutes, 2 minutes. तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इज गोइंग टू बी देयर. यही एक सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है. होगा तो नाम बदल दूंगा. चलिए, नेक्स्ट इज अगेन विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट पेन एंड वन ऑफ द स्कोरिंग सेक्शन जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. सर मैथ्स है नहीं, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, एंड इस वजह से आई एम नॉट एबल टू क्रैक दिस क्वांटिटेटिव सेक्शन, एंड आप लोग मॉक्स में भी उसे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आई हैव सीन, एंड द चैलेंज विच स्टूडेंट कंसिडर. ये चैलेंज नहीं है, ये आपका दोस्त है जो अंत में आपको साथ देगा. कंसिडरिंग अ सिचुएशन कि अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको नहीं बनते इन अ मेन एग्जाम, क्वांट इज द ओनली सेक्शन आउट ऑफ 12 जो आपको 7 to 8 मार्क्स दे के जाएगा एज अ गिफ्ट, और वो बैलेंस करेगा बाकी सेक्शंस के साथ, एंड विल गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस. अगर आप क्वांटिटेटिव सेक्शन का पूरा 4 years का एल्गोरिदम चेक करेंगे, द स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 7 marks और 6 marks इन क्लैट इज ओनली एबल टू क्रैक इट. जिन्होंने इस सेक्शन पे ध्यान नहीं दिया उनका क्लैट क्रैक हुआ ही नहीं, वो लीक से ही बाहर है. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड दैट इस की एंजाइटी और इसके जो सब्जेक्ट के जो कैलकुलेशन है उससे आई डोंट हैव टू रन अवे. सो इसमें करना क्या, ये तो चैलेंज आपने हमें वापस रिपीट कर दिया. द मेन थिंग विच यू गाइज हैव टू डू इज यू नीड टू फर्स्ट गेट योरसेल्फ क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट्स है. इफ द कॉन्सेप्ट्स आर डन देन चेक इट. Similar conceptual part questions are there in your mocks or not. So I need to at least start attempting in the mocks. So what you have to do is between 2 theory sections, अगर मैं इंग्लिश लीगल साथ कर रहा हूं या इंग्लिश लॉजिकल साथ कर रहा हूं, बिटवीन इंग्लिश एंड लॉजिकल कीप 1 caselet of maths in between when you attempt the mock. Just give 5 to 7 minutes, एक caselet attempt किए, that's it. At least start doing that. But most of the students are doing, they are keeping quantitative techniques at the last. और आखिरी के 7-8 मिनट्स में यू आर नॉट एबल टू क्रैक इट, एंड इस वजह से आप अटेम्प्ट नहीं करते, एंड यू बिलीव कि लेट मी गो एंड अटेम्प्ट अ सेक्शन विच आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ. डोंट डू दैट प्लीज. इसको बीच में ही, शुरुआत के ही 45-50 मिनट्स में अटेम्प्ट 1 caselet. इफ यू आर एबल टू सॉल्व 1 caselet, एटलीस्ट इट विल गोइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस एट द लास्ट कि चलो 2nd caselet मैं देख लेता हूं. तो अगर इफ यू आर एबल टू स्टार्ट स्कोरिंग 3
in your first 2 mocks, मतलब जो अगर आप जुलाई से if you'll start doing the mocks, if you are able to score 3, then maybe end तक you'll reach to 6, then you'll be able to reach 8, then you'll be able to reach till at least 10. तो ये next 4 months में 10 तक you will be able to reach easily. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के टारगेट्स यू कैन सेट. बट द प्रॉब्लम इज हम इससे भाग रहे हैं, हमें ये टफ लग रहा है. टफ नहीं है, you know it. 10 तक you guys have studied maths. Go back to the basics, go back to the concepts, वापस पढ़ो. Talk to your math teacher, quant teacher and sit with them कि what exactly is the issue. Don't worry, ये आप बिल्कुल चिंता मत करो कि मॉक में मुझे नहीं बन रहा. Once your mock is done, मॉक को वापस से पिक करो and solve that question not in a time frame but at least to understand कि मुझे conceptual clarity है कि नहीं. अगर इसकी clarity है, you already have knowledge about it, then what's the issue? You just have to find exact time और वो मेरे 120 minutes के अंदर मुझे solve करना है. Similarly with another paper also, जैसे SLAT आएगा उसमें भी मुझे मिस नहीं करना, बट वहां पे तो analytical reasoning आता है, मैथ्स डायरेक्टली नहीं आता, बट स्टिल डोंट रन अवे विद दैट. इसीलिए आई एम टेलिंग यू प्लीज डोंट लीव दिस पर्टिकुलर सेक्शन फॉर योर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, बिकॉज यही सेक्शन है जो आपको टॉप नेशनल लॉ कॉलेज में जाने में हेल्प करेगा. ठीक है. नेक्स्ट द चैलेंज इज वेदर इट इज इंग्लिश, वेदर इट इज लीगल, वेदर इट इज लॉजिकल. सर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज आई एम गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन दिस ऑप्शन और दैट ऑप्शन. भाई देखो, इसका एक ही चैलेंज जो दिमाग में आ रहा है कि सर आई एम गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन ऑप्शंस, मैं तो पैराग्राफ ही पूरा नहीं पढ़ पा रहा, my legal concepts are not that strong, that's why I don't get confidence to read it. Logical में और English के जो paragraphs है उसमें vocabulary and grammar is so weak that I'm not able to do it. So guys, the only solution is daily you have to read continuously for 1 hour. स्पेशली योर एडिटोरियल पोर्शन. और अगर आपको नहीं पता एडिटोरियल को कैसे पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड अ वीडियो हाउ टू रीड एडिटोरियल इन द न्यूज़पेपर. तो गो वॉच दैट वीडियो. उसमें मैंने प्रॉपरली बताया, बट डेली 1 आवर एट अ स्ट्रेच, कीप दैट इन माइंड. नहीं समझ आ रहा है फिर भी कोशिश करिए पढ़ने की, बिकॉज द टर्मिनोलॉजीज विच आर देयर इन द एडिटोरियल विल गोइंग टू हेल्प यू to understand that paragraph. You might find it difficult, but if editorial is too difficult for you, don't worry. Pick your previous mocks, the SimClats which you have already given it up. जो आपने ऑलरेडी IMS के SimClat दे दिए या mock you have already given up, please go and pick those paragraphs. Sit properly, सिर्फ पैराग्राफ रीडिंग करिए एंड 3 पॉइंटर्स इन योर माइंड उसको बनाने की कोशिश करिए. अगर इफ यू आर एबल टू डू दिस 3 पॉइंटर स्ट्रैटेजी, read the paragraph, 3 points in mind, read the paragraph, 3 points in a summary format अगर बना पा रहे हैं, do this with English, legal and logical at a stretch I am talking about. अगर आप at a stretch नहीं कर रहे हो तो आपको 120 minutes में रीडिंग जो करना है, जो आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, स्टैमिना अगर नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली डीरेल हो जाएगा इन द मेन एग्जाम और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. सो इसीलिए आई एम गोइंग टू क्रैक दिस अप. फर्स्ट द सॉल्यूशन to the challenge or the problem which you are facing is I am not able to comprehend or reading or vocabulary problem है. अगर daily आपने एडिटोरियल या प्रीवियस मार्क्स में 1 आवर फॉर द नेक्स्ट 15 डेज कर लिया, ये प्रूवन सोल्यूशन है, प्रूवन. ये आपको हेल्प करेगा. आपको हेल्प करने के बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन पे आके जरूर बताना कि आपको हेल्प करा कि नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स को एंड दे आर अप्रिशिएटिंग दिस एफर्ट विच आई हैव टेकन इट अप फॉर नेक्स्ट 15 डेज. प्लीज डू इट अप. तो आप में वोकैबुलरी, ग्रामर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. बट डोंट लिमिट योरसेल्फ विद दिस ओनली. इंग्लिश न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो, मे बी द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, व्हाटएवर न्यूज़पेपर यू रीड, और कोई भी इंडियन एक्सप्रेस या वेबसाइट पे आर्टिकल पढ़ते हैं, प्लीज उसमें जो टर्मिनोलॉजीज मिलती है उनको एनसर्कल करके कहीं पे लिख लो, सो दैट मेमोरी में कहीं ना कहीं वो रह जाएगा. यू डोंट हैव टू लर्न इट, यू डोंट हैव टू रीड एनीवेयर, बट उसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आने चाहिए. सो एक्सपैंड योर होराइजन. तो एडिटोरियल, न्यूज़पेपर, इनको जितना ज़्यादा समय देके इफ यू गोना रीड इट अप हाफ एन आवर टू 1 आवर डेली करते हो तो ये आपको हेल्प करेगा. नहीं टाइम है, प्रीवियस मॉक्स पे चले जाओ, उनकी पैराग्राफ रीडिंग कर लो. पिछले साल के किसी के मॉक्स मिल जाए, रैंडम टेलीग्राम पे किसी के मॉक्स मिल जाए, पिक इट अप, रीड इट अप. दैट इज एन इंपॉर्टेंट सोल्यूशन. बट सर ये सब करने के बाद भी हमें उसी से सिमिलर पैराग्राफ्स नहीं मिल पाते. तो गाइस, यू नो हाउ टू स्कैन अ पेपर. तो उसका PDF बन गया,
उस पीडीएफ को कोई से भी AI टूल में डाल दीजिए, जैसे चैट जीपीटी में आपने डाल दिया, एंड उसमें यू पुट अ कीवर्ड विच आई एम टेलिंग टू यू पीपल इज please suggest similar word paragraph of 450 words, a similar 450 word paragraph which is in line with CLAT preparation as per the new trend. आपको लगातार ऐसे 7-8 पैराग्राफ्स आ जाएंगे, डू दैट रीडिंग, सिंपल, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो उसी जॉनरा पे मल्टीपल पैराग्राफ्स आएंगे, 400 to 450 वर्ड्स, ये जरूर कीवर्ड में डालिएगा। तो अगर आप इसमें प्रॉपरली उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उस AI टूल में, आपको वैसे ही सिमिलर पैराग्राफ्स, तो पहले अपनी PDF वहां पे पेस्ट करना और बताना कि इन लाइन विद द PDF जो मैंने यहाँ पे अभी सबमिट किए उसी से मिलते जुलते हमें इस पे कुछ और सजेस्टिव पैराग्राफ्स दे दो, सो दैट हम रीडिंग एबिलिटी बढ़ा लें, फिर उसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ा लेना। डेली इस टूल का अगर आप AI टूल का यूज करते हो तो आपको 15-20 मिनट्स डेली अगर रीडिंग कर पा रहे हैं, इट विल गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। अब आ जाते हैं वापस से मैथ्स में, क्यों? क्योंकि इसमें AI टूल की बात हुई तो मैथ्स पीछे क्यों रह जाए। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव रेज्ड दिस चैलेंज कि सर कॉन्सेप्ट ठीक है, अटेम्प्ट भी हो रहा है, बट मुझे टाइम लगता है बिकॉज माय कैलकुलेशन इज वीक। सो अगेन मेक यूज ऑफ AI टूल। वहां पे जाके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, स्टूडेंट्स आर यूजिंग इट एंड उनको हेल्प कर रहा है। चैट जीपीटी में जाके अपना वहां पे कैलकुलेशन डालो। फॉर एग्जाम्पल अगर कैलकुलेशन हो गया मे बी 53% ऑफ 35, अगर आपको ये मॉक में दिस इज द कैलकुलेशन विच यू हैव रिसीव्ड, पुट इट अप एंड गिव द इंस्ट्रक्शन, सिमिलर टाइप के 10 मोर क्वेश्चंस क्रिएट कर दो ओनली ऑन कोर कैलकुलेशन बेस्ड। वो आपको क्वेश्चन दे देगा, फिर आप उसमें और क्वेश्चन 10 डेली 10 मिनट्स का प्रिपरेशन करेंगे, इट विल गोइंग टू हेल्प। देन इंक्रीज द लेवल, इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल। ऐसे ही सिमिलरली रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस के क्वेश्चंस यू कैन मेक। क्वेश्चंस का मतलब है कैलकुलेशन बेस्ड, एंड वहां पे लिख के नहीं करना है, रादर देन इट हैज टू बी द मेंटल वन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिमागी तौर पे करना है, लिख के नहीं करना। तो वहीं पे अगर डेली 10 मिनट्स इसका प्रैक्टिस किया तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, तो आपके अटेम्प्ट्स भी पूरे हो पाएंगे। सो दिस इज अ चैलेंज विच आई एम रिजॉल्विंग इट। तो इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल में भी हो गया, क्वांट में भी AI टूल का हेल्प हो गया। अब आ जाते हैं कि सर मॉक्स वी आर गिविंग बट वी आर नॉट एबल टू स्कोर। आपने बोला एनालिसिस किया, वो सब करने के बाद भी मॉक्स समझ नहीं आ रहा कि करना क्या, क्योंकि हमारी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी एंड एनालिसिस अभी भी वीक है, बिकॉज यू गाइज आर नॉट वॉचिंग आर वीडियोज विच वी आर पुटिंग। वाई टू गो फॉर अ मॉक, हाउ टू एनालाइज मॉक्स, कितनी बार बोला, वही वीडियो वापस जाके देखो। सिमिलरली इसमें समरी बताता हूं। एनालिसिस में इफ आई से दैट देयर आर 3 थिंग्स टू एनालाइज, सो थर्ड पार्ट पे आता है व्हाट इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स फर्स्ट 2 में करेक्ट आंसर आइडेंटिफिकेशन इज नॉट एनालिसिस। फर्स्ट 2 में आता है कि वाई ए और बी, वाई, उसके पीछे का रीजन आपको आइडेंटिफाई करना है। बट द प्रॉब्लम इज यू गाइज आर गोइंग and see the entire explanation which is given by your institute for the mocks. Don't go for it. तो मैं इसको break down करता हूँ. You have given your mock is over. Now you have detailed explanation answers. I will suggest you don't see the explanation, check your paper. दोनों में difference है. That means if you went for, maybe let's say you went for question number 5, you have marked answer as A. आपके booklet में answer is A. You went to the explanation जहां पे you have seen only 5th, इसका करेक्ट आंसर क्या है, उसमें आया B, ठीक है। नाउ ऐसे ही पूरे पेपर को चेक करना है, 5th रॉन्ग हुआ, 6 सही हुआ, 7 ऐसे करके 120 क्वेश्चन, व्हाटएवर क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड, चेक द एंटायर पेपर, कीप असाइड द एक्सप्लेनेशन, उसको भूल जाओ, ठीक है। PDF है तो उसको कहीं छुपा दो। नाउ चेक कि इसमें बी आंसर क्यों था ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। विजिट द पैराग्राफ, रीड इट, गो डीप डाउन इनटू इट कि ऐसा क्या हुआ कि मुझसे नहीं बना। एंड इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इट देन दैट बिकम्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑप्शंस। बट फिर भी इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम देन यू कैन रेफर द एक्सप्लेनेशन और टॉक टू योर मेंटर्स। नहीं तो अभी भी a lot of students are saying कि सर वी आर एनालाइजिंग मॉक। एनालाइजिंग का मतलब चेक करना नहीं होता, एनालाइज का मतलब होता है कि कौन सा सही ऑप्शन था और क्यों था, एंड मेरे नेगेटिव्स कितने हैं, ये एनालिसिस में जाना है। आई नीड टू चेक इट अप। मेरे अटेम्प्ट्स कितने हैं, ये एनालिसिस है। कितने मार्क्स है वो तो आखिरी में जाएगा, कितने करेक्ट दैट वुड बी द लास्ट वन। डोंट रन आफ्टर स्कोर्स राइट नाउ, रन आफ्टर योर स्ट्रैटेजी कि मैंने मॉक दिया,
आई हैव अटेम्प्टेड नियर अबाउट 90 क्वेश्चंस और मेरा स्कोर 50 आया है, मतलब मेरे 40 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, स्कोर नहीं, मेरे करेक्ट 50 एंड 40 गलत हो गए। ये तो बिग क्वेश्चन मार्क है। अब ये 40 के पीछे के रीजंस ढूंढिए, आइडेंटिफाई द रीजंस, बट द प्रॉब्लम इज हमें चाहिए स्कोर, कि स्कोर कैसे निकलता है। डोंट डू दैट, स्कोर तो पता चल जाएगा, स्कोर कहां जा रहा है, आइडेंटिफाई करिए, चेक करिए इन द एनालिसिस पार्ट। नाउ दिस इज द चैलेंज कि सर मुझे मॉक एनालिसिस करना नहीं आता, कितने वीडियोस, इसमें भी बता रहा हूं, पिछला भी वीडियो लिया था, और क्या करूं, घर आ जाऊं भाई, ये भी पॉसिबल है तो आ जाऊंगा, बट आप ही को करना है ना, यू ओनली हैव टू डू इट। So that is why I am saying that when you see कि these many are the attempts one, these are the correct one which I got it, then I need to check which are the wrong ones and identify the reason ये गलत क्यों है। अगर if it is a silly mistake, it's okay, silly mistake सबसे होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी हो रही, it's okay। बट अगर conceptual mistake है, revisit the paragraph, revisit your concepts, go study again। बट अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक भी नहीं है कि वहां पे मैं कंफ्यूज हो गया था ऑप्शंस के बीच में, दैट्स ओके, क्योंकि इस मॉक में यू गॉट कंफ्यूज, मे नॉट बी इन द नेक्स्ट मॉक। अब इसी का एक ऑपोजिट कंडीशन बताता हूं। आई हैव अटेम्प्टेड 90, माय 80 क्वेश्चंस गॉट करेक्ट, वाओ, इट्स अ प्राउड फीलिंग। भाई इसको भी एनालाइज करो कि what strategy worked in this mock and why it has not worked in the previous mock, that is analysis। but होता क्या है, जैसे ही हमारा एक स्कोर बढ़ रहा होता है, गिरता है, हम सैड होते हैं, फिर जब स्कोर बढ़ जाता है वी आर सुपर हैप्पी, अच्छी बात है, खुश हो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट ऐसा क्या काम कर गया इस मॉक में विच हैज हेल्प मी टू एनहांस द स्कोर, ठीक है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। अब अभी भी most of the students are doing, sir we solve as per the paper which is given, we go for English, we go for current affairs, we go for legal, logical and end में quant। भाई ऐसा मत करिए भाई, मतलब whatever is the pattern, maybe English पहले है, then you go for legal, logical, it drains a lot of energy। so you plan it your way कि दो कोई से theory section, so if I give you a pattern, take 2 theory together, then you can break a practical, practical means either quant or current affairs, then take a theory and then take a practical, ठीक है। but in the last 20-25 minutes don't keep your logical, legal or English if any of your section is weak। ये 3 theory section 92 marks अकाउंट करते हैं, इसको मोर देन 100 मिनट्स या 95 मिनट्स के ऊपर मत लेके जाना। मतलब शुरू के 1.5 घंटे में इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट, और शुरू के 100 मिनट्स में इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट, इट्स वेरी गुड, एल्स डोंट टेक दैट सेक्शन एट द एंड। ये आपका अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ठीक है। सो आइदर टेक 2 theory और यू कैन टेक इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल, करंट अफेयर्स, लीगल एंड देन मैथ्स, ठीक है। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट, क्योंकि इनिशियली वी आर प्रॉपरली वार्म्ड अप, वी हैव नॉट ड्रेन्ड आवरसेल्व्स मच, सो इसलिए इनिशियली वी कैन टेक 2 theory, दैट मीन्स इंग्लिश लीगल, लीगल लॉजिकल या लॉजिकल इंग्लिश। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर रनिंग आफ्टर कि सर लॉजिकल वीक है इसलिए आई कीप इट एट द एंड। नो, उसको शुरू में लेके आओ, क्या पता वो स्ट्रांग बन जाए। इंग्लिश स्ट्रांग है, बीच में रख दो क्योंकि वो कॉन्फिडेंस गेन करेगा। यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यही चैलेंज आप लोग फेस कर रहे थे, उसी का आंसर मैंने इसमें दिया है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन इज कि सर आई फील प्रोक्रेस्टिनेटेड हो रहा है, मैं बहुत ओवर थिंक कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद मैं क्लैट में कुछ ना कुछ बिगाड़ दूँ या एंट्रेंस एग्जाम अच्छा नहीं दे पाऊँ, आई फील डीमोटिवेटेड। रिलैक्स, देखो आफ्टर ऑल, ये बात सब लोग अच्छे से सुनेंगे, प्लीज कीप दैट इन माइंड। आफ्टर ऑल, all these efforts which you are putting, we are doing it for your benefit, to get into a law college, because at the end of the day you want to be a lawyer। now again a question comes कि क्या lawyer सिर्फ you will going to into a national law college और free lawyer बन पाओगे? the answer is no। you can become one of the successful lawyer being part of private college also, being part of some government college also or a state college also, it's not a big deal। how you deal with that pressure, that depends upon you। तो इसीलिए a motivating thing is we all are doing, putting our efforts so that we are able to crack an entrance exam, because it is just an entrance exam, it is not your life exam। और लाइफ का कोई एग्जाम ही नहीं होता है। सो वाई यू गाइज हैव टू बी स्केर्ड ऑफ इट। सो प्लीज कीप अ सेल्फ बिलीफ कि मुझे पता है, आई एम गोइंग टू क्रैक इट, और कहाँ आई एम फेसिंग डिफिकल्टी, आई एम गोइंग टू टॉक टू माई मेंटर्स, टॉक टू माई टीचर्स, टॉक टू माई एजुकेटर्स, एंड आई एम नॉट गोइंग टू थिंक मच।
अगर आप सोचने ही बैठ गए विच थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, देन यू विल गोइंग टू ड्रेन अ लॉट ऑफ एनर्जी. सो इसीलिए इन योर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ योर स्टडीज give yourself half an hour time of walking. You go for a brisk walking, go to a park, go to terrace and just walk, stay away from your cell phone. वही आपको motivation देगा. Now the next problem comes to be कि sir I'm not able to remain consistent. Why you are feeling that thing? Because you guys are not keeping a proper note of what you are doing. अगर ऑन डेली बेसिस आपने लिखना चालू कर दिया, मॉर्निंग में आई डिड दिस, इवनिंग में आई डिड दिस और आफ्टरनून में आई डिड दिस, वॉट एवर चेक लिस्ट अगर आपने बना ली, वॉट एवर यू हैव डन का, तो एट द एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीक यू हैव द एंटायर थिंग कि मैंने सच में बहुत कुछ किया है. एंड अगर आप जून तक का पूरा रिविजन देखेंगे, सच में आप लोग एक अच्छी जर्नी ट्रैवल करके आओ. तो डोंट फील अशेम्ड और लेस प्राउड ऑफ यू. आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू. भाई आप जाके अपनी पीठ थपथपा लो, क्योंकि आई एम प्राउड ऑफ यू. एंड आप लोग जो भी प्रिपरेशन करो, यू गाइज आर पुटिंग एफर्ट्स. थिंक अबाउट दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट इवन श्योर ऑफ कि उनको करियर में करना क्या है, तो एटलीस्ट आपने तो डिसाइड कर लिया. एंड द वंस हु हैव इवन टेकन अ ड्रॉप, डोंट कंसिडर कि मैं पीछे चला गया. भाई शेर 2 कदम पीछे जाता है लंबी छलांग मारने के लिए, तो उससे डरना नहीं है मुझे. आई नीड टू बी सेल्फ मोटिवेटेड. मुझे बार बार बोलना है यस आई एम एबल टू डू इट, मुझे सेल्फ बिलीव है, आई एम गोइंग टू क्रैक इट. अगर ये आप खुद से बोलने लगे, डेफिनेटली आप इसे कंसिस्टेंटली कर पाओगे. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि अगर मैं कंसिस्टेंट हो गया तो फोकस मेरा खुद ब खुद सेट हो जाएगा. तो इसलिए कीप राइटिंग इट अप, वट एवर यू आर डूइंग, डू दैट थिंग. एंड अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख लिया गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और ऐसी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज मैं लेके आऊंगा, बट उसके लिए मुझे भी मोटिवेशन चाहिए. Hit the like button, subscribe to our channel and drop into the comments. कुछ भी प्रॉब्लम है, I'm gonna take the screenshot with your name और मैं उसके solutions यहाँ पे ले गया हूँ. Till then, bye bye, सिद्धांत सर signing off. Thank you so much.